नमस्ते बच्चों, सब लोग ठीक है ना। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या है लिंग? क्या है लिंग? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, लिंग माने क्या है? लिंग माने जेंडर। क्या है? जेंडर। कितने प्रकार के जेंडर है? എത്ര പ്രകാരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ ഉണ്ട്? ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ, മെയിൽ ജെൻഡർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാമറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രകാരത്തിലുള്ള ജെൻഡേഴ്സ് ആർ 2 ടൈപ്സ്, ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആൻഡ് മെയിൽ ജെൻഡർ. അതുപോലെ തന്നെ वो हिंदी में പഠിനാ चाहिए. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലും അത് പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ജെൻഡറിന്റെ हिंदी वो शब्द है लिंग. क्या है? लिंग. क्या है? लिंग. कौन कौन सा लिंग है? 2 प्रकार की लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो यहाँ देखो लिंग. लिंग माने जेंडर. लिंग माने जेंडर. 2 types of genders are there, फीमेल जेंडर एंड मेल जेंडर. लाइक दैट हिंदी में 2 प्रकार की लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है. तो ये क्या है लिंग? क्या है लिंग? लिंग का मतलब है किसी वस्तु या चीज या पक्षी और मृग, एनीथिंग എന്തായാലും അതിനെ स्त्री का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं. स्त्री का बोध कराने वाले शब्द को സ്ത്രീലിംഗ് कहते हैं. അതായത് സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക്, ശബ്ദം ഏതാണോ അതിനെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ന് പറയുന്നു. और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं. പുരുഷനായിട്ടുള്ള, പുരുഷ ജാതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിനെ പുല്ലിംഗം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ ലിംഗമുണ്ട്, സ്ത്രീലിംഗ് और पुल्लिंग. स्त्रीलिंग में स्त्री जाति आते हैं, स्त्री जातिയിലുള്ള എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. पुल्लिंग में पुरुष जाति की क्या क्या है वो सब पुल्लिंग में आते हैं. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ത്രീലിംഗ് പുല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ हाँ देखो दो बच्चे के चित्र यहाँ दिया गया है. देखो लड़का और लड़की. ये देखो ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ, ഒരു മോനുണ്ട് ഒരു മോളും ഉണ്ട്. तो നോക്കിയേ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, लड़का क्या है? उसे इस बॉय को हम लड़का कहते हैं और इस गर्ल को हम लड़की कहते हैं. കണ്ടോ? ലഡ്ക ലഡ്കി. ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്, പുരുഷനാണ്, പുരുഷ ജാതിയിലായതുകൊണ്ട് ഇത് പുല്ലിംഗമാണ്. ഇതോ സ്ത്രീ ജാതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീലിംഗ് है. समझ में आया ना? देखो और उसके बाद हाँ मोर. നിങ്ങൾ മയിലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മയിൽ, മോർ. മോർ എന്ന് പറയും മയിൽ. മയിലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സൂയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ, മയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മയിൽ അവിടെ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മയിൽ നോക്കി, നിറയെ പീലിയുള്ള മയിൽ എന്താണ്? അത് ആൺമയിലാണ്. അതായത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന, പീലി വിടർത്തി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മയിൽ ആൺമയിലാണ്. പീലി ഇല്ലാത്ത മയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത് പെൺമയിലാണ്. ഇത് ആൺമയിലാണ് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം, ഭംഗിയുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളത്തിൽ വളഞ്ഞ കൊമ്പുള്ളത് ആരാണ്? അത് ആണാനയാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ പെണ്ണാനയ്ക്ക് എന്തില്ല? വലിയ കൊമ്പില്ല, തേറ്റ പല്ല് മാത്രം, ചെറിയ തേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതാണ്. तो देखो लड़का लड़की. और यहाँ क्या है? मोर मोरनी. क्या है? मोर मोरनी. मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है. ओके, मोर क्या है? मोर माने मईल, ആൺമയിലാണ്, पुल्लिंग है, और मोरनी स्त्रीलिंग है, പെൺമയിലാണ്. ओके, देन क्या है उसके बाद शेर शेरनी. शेर शेरनी. शेर क्या है? शेर माने लायन. शेर क्या है? ലയൺ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും സിംഹം സിംഹിണി എന്നല്ലേ പറയാ? സിംഹം സിംഹിണി. അപ്പോൾ ഷേർ ക്യാ ഹേ? ഷേർ
सिंहम, शेरनी, सिंहिनी, शेर, शेरनी। और उसके बाद यहाँ बाघ, बाघिन, कड़वा, आन कड़वा, पेन कड़वा, बाघ, बाघिन, बाघ आन कड़वा, बाघिन पेन कड़वा। उसके बाद हाथी, हाथी आना, हाथिनी, പെണ്ണാന, പിടിയാന, ഓക്കെ हाथिनी, കൊമ്പനും കൊമ്പനാനയും പിടിയാനയും, കൊമ്പനാന हाथी, पिड़ियाना हाथिनी। और उसके बाद बंदर, बंदर क्या है, बंदर माने मंकी, कुरंगन। और बंदरिया, बंदरिया पेन कुरंग, आन कुरंग ഉണ്ട് പെൺ കുരങ്ങുണ്ട്। तो बोर्ड में मैं लिखती हूँ, यहाँ देखो लिंग 2 प्रकार की है। देखो लिंग कितनी प्रकार की है, लिंग 2 प्रकार की है। स्त्री लिंग, स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग। और यहाँ देखो पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग। यहाँ देखो स्त्रीलिंग माने फीमेल, और यहाँ देखो पुल्लिंग क्या है, मेल जेंडर, मेल मेल जेंडर यहाँ, और यहाँ फीमेल जेंडर। ये देखा लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग माने फीमेल जेंडर, पुल्लिंग माने मेल जेंडर। तो इसके बाद ये नोटबुक में लिखना, रफ नोटबुक है ना, रफ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം, ഓക്കെ। അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിക്കാം. ലിങ്ക്, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये देखो ओके, पुल्लिंग पहला शब्द क्या है, लड़का, पहला शब्द लड़का, देखा। और यहाँ क्या है, क्या होता है, लड़की, लड़की, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, लड़का बॉय, लड़की गर्ल। उसके बाद मोर, मोर माने पीकॉक, है ना, मोर क्या है, पीकॉक। और यहाँ देखो मोरनी क्या है, मोरनी, मोरनी क्या होता है, मोरनी माने पीहन, पेनमयल, पीहन। और उसके बाद यहाँ देखो शेर, ये देखो शेर, लायन, शेर। यहाँ देखो शेरनी क्या है, शेरनी, लायनस, शेरनी, देखा शेरनी। और यहाँ बाघ, बाघ। और यहाँ देखो बाघिन क्या है, बाघिन, बाघिन। और यहाँ देखो भाती, देन अगला शब्द है हाथी। और यहाँ देखो हाथिनी, हाथीनी, हाथिनी, धा എഴുതുമ്പോൾ മൊത്തം വരയിടാൻ പാടില്ല, हाथिनी, देखा हाथिनी। और धा कंप्लीट വരയിടാൻ പാടില്ല। അതുപോലെ ഇവിടെ बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन यहाँ छोटी ई की मात्रा, इवड़े വലിയ ई ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ചെറിയ ई ആണ്, ओके। उसके बाद देन बंदर, बंदर क्या है, बंदर। यहाँ देखो बंदरिया क्या है, बंदरिया। ये देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में लड़का तो यहाँ लड़की, मोर यहाँ मोरनी,
शेर यहाँ शेरनी, बाघ यहाँ बाघिन, हाथी यहाँ हाथिनी, बंदर यहाँ बंदरिया। देखा? तो कोई संदेह है तो मुझसे बताना। यू हैव एनी डाउट यू हैव टू आस्क मी, ओके। देन उसके बाद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक प्रश्न है, समझकर लिखिए, समझकर लिखिए। हम देखो हिरण, हिरण क्या है? हिरण हिरण क्या है? हिरण डीर, हिरण हिरणी, हिरण हिरणी। और यहाँ लड़का लड़की, हमें पता है लड़का लड़की। देन घोड़ा, घोड़ा एक नया शब्द, घोड़ा माने हॉर्स। घोड़ा എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ഹിന്ദി ഘോടി, स्त्रीलिंग क्या है? घोड़ी, घोड़ा घोड़ी। देन यहाँ चूहा चूहिया, चूहा चूहिया, चूहिया का पुल्लिंग शब्द है चूहा। और यहाँ ऊंट, ऊंट क्या है? ऊंट माने कैमल, ऊंट माने कैमल, उसका स्त्रीलिंग शब्द है ऊंडिनी। क्या है? ऊंडिनी। देन यहाँ देखो आखिरी शब्द सिंहिनी है। सिंहिनी क्या है? सिंहिनी का पुल्लिंग शब्द है सिंह। क्या है? सिंह। मैं लिख कर देती हूँ, तो ये सब नोटबुक में लिखना, रफ नोटबुक में लिखना। तो यहाँ देखो हिरण, हिरण हिरणी। और यहाँ लड़का लड़की हम पता है, हमें पढ़ चुका है। यहाँ घोड़ा, यहाँ घोड़ा। यहाँ देखो घोड़ी, घोड़ी। और चूहा, चूहा माने राट, चूहा क्या है? राट, चूहा। यहाँ चूहिया, चूही या चूहिया, चूहा चूहिया। और उसके बाद ऊंट, क्या है? ऊंट, ऊंट कैमल। यहाँ ऊंटनी, क्या है? ऊंटनी, ऊंटनी। देखो ऊंटनी, देखो ऊंट ऊंटनी। और सिंह, आखिरी शब्द है सिंह, सिंह। यहाँ सिंहनी, क्या है? सिंहनी। देखो हिरण हिरणी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, ऊंट ऊंटनी और सिंह सिंहिनी। देखा? और उसके बाद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक और कार्यानुभव है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. 5 questions are there. First question, जंगल का राजा डैश है. जंगल का राजा डैश है. ब्रैकेट में शेर शेरनी. क्या है उसका उत्तर? वो लिखना. क्या है? जंगल का राजा क्या है? कौन है? शेर. कौन है? शेर. तो उत्तर यहाँ लिखना, रिक्त स्थान में भरना. और दूसरा क्वेश्चन, डैश धीरे धीरे चल रही थी. डैश धीरे धीरे चल रही थी. और तीसरा क्वेश्चन, डैश तेज दौड़ता है. डैश तेज दौड़ता है. और फोर्थ क्वेश्चन, एक डैश पेड़ पर लटक रही है. एक डैश पेड़ पर लटक रही है. वहाँ आंसर्स है बंदर बंदरिया. क्या है सही उत्तर? वो लिखना. और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, बादल देखकर डैश नाचने लगा. बादल देखकर डैश नाचने लगा. तो उसका आंसर भी है मोर और मोरनी. क्या है सही उत्तर? वो चुनकर यहाँ लिखना चाहिए. तो ലിങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ലിങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. क्या है लिंग?
किसी पुरुष जाति का बोध या स्त्री जाति का बोध देने वाले शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। और उसका उदाहरण भी यहाँ दिया गया है, हिरण हिरणी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहिनी। ऐसा बहुत अधिक शब्द है तुम्हारा ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് में, देखना പഠിना चाहिए। അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക, എഴുതി പഠിക്കുക, റഫ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. तो बाकी हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे.